Now, in the latest news coming in on the workers' protest, which began in Noida, we hear that the unrest has spiraled. Protests have now spread to Faridabad, where workers in Sector 37 have gone on strike, bringing operations to a halt. Employees of the Motherson Group are leading the agitation, joined by workers from other industrial units. Heavy police deployment is in place as tensions remain high. Top cops are closely monitoring the volatile situation in Noida. Uttar Pradesh DGP Rajiv Krishna and ADG Law and Order Amitabh Yash are tracking developments live from the control room in Lucknow, even as they have assured that the situation is now in control and strict action will be taken against anyone trying to incite unrest from now on. On the ground, tensions flared in Noida Phase 2 as a massive workers' protest turned violent. Several police vehicles were vandalized and a few others were set on fire amid clashes. The unrest was triggered by employees demanding a salary hike, with the situation escalating rapidly. Security has now been tightened as authorities work to bring the situation under control. 4 days, workers had been demonstrating, demanding better wages and working conditions. But the situation spiraled, with reports of stone pelting, police vehicles being vandalized and overturned and vehicles set on fire. Police responded with tear gas to disperse the crowd. Protests also hit Sector 62 in Noida, triggering massive traffic snarls and disrupting daily life. Following the unrest, Noida District Magistrate Medha Rupam said that administration has agreed to key demands. पिछले 2 से 3 दिवस में सभी औद्योगिक इकाइयों के साथ विस्तृत रूप से बैठकें रखी गई हैं और निम्न निर्देश प्रदान किए गए हैं जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। पहला निर्देश, ओवरटाइम का भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। साथ में प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाएगा और यदि साप्ताहिक अवकाश पर काम किया जाता है तो उसका भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। दूसरा निर्देश, सभी श्रमिकों को नियमानुसार बोनस दिया जाएगा, जो कि अधिकतम 30 नवंबर से पहले उनके बैंक खातों में सुनिश्चित किया जाएगा पहुंचाना। तीसरा निर्देश, यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति समस्त कार्यस्थलों पर गठित की जाएगी और इसकी अध्यक्षता महिलाओं द्वारा की जाएगी। शिकायत पेटी की स्थापना भी करी जाएगी, जिसके अंदर श्रमिक भाई बहन शिकायतें उसमें डाल सकते हैं। साथ में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सम्मानजनक व्यवहार सभी श्रमिकों के साथ किया जाए। चौथा निर्देश, श्रमिकों का वेतन प्रत्येक माह 10 तारीख से पहले उनको एक मुश्त उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। साथ में अगला निर्देश, सभी श्रमिकों को वेतन पर्ची अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ जिले स्तर पे एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है और इस कंट्रोल रूम में श्रमिक भाई बहन अपनी किसी भी समस्या को बता सकते हैं, जिस पे त्वरित रूप से कार्रवाई करी जाएगी। इसके साथ साथ सभी श्रमिक भाई बहनों से यह मेरी अपील है कि आप सब शांतिपूर्वक अपने अपने कार्यस्थल पर जाएं और कार्य करें। साथ में आपसे यह भी अपील है कि जिले का सौहार्द बनाए रखें व कानून व्यवस्था भी बनाए रखें। Meanwhile, overtime wages will be paid, weekly offs ensured, and work on holidays will be compensated, is what the authorities have assured the workers. My colleague Aparna, in fact, joins live with us. Aparna has been, in fact, covering some of the massive traffic jams that have been around the NCR region, around Noida as well. Aparna, what is the latest on the ground?
Well, Varghese, as you can see that lots of people have gathered here, and this is the situation that has erupted after factory workers all started protesting for their basic right of salary revision, and now this protest has turned violent in several areas of Noida and Greater Noida. You can see here that lots of people have gathered. They are factory workers and they have gathered here for their rights. They are demanding that their rights should be heard, whether it's about the overtime fee and also bonus along with weekly offs. Let's listen from them what's the situation that they are facing right now. Sir, क्या नाम है आपका? महेश राम। क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? सैलरी इतना मिल रहा है उसमें पूर्ण नहीं पड़ता, पूरे महीने नहीं चल पाता खर्च। मैम, क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? यस मैम, हमें यहाँ पे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ये कंपनी वाले हमारी सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं और ना ही सैलरी को लेकर कोई बात की जा रही है। यहाँ पे 5 दिन हो गए हैं आज मजदूरों को ऐसे, इतनी भीड़ में कितनी गर्मी हो रही है, सब लोग बाहर हैं, कोई सोच ही नहीं रहा, कोई पुलिस प्रशासन या कोई भी यहाँ पे कोई नेता तक ये नहीं आया कि इतनी गर्मी में आप लोग ऐसे किस चीज़ के लिए धरना दे रहे हो। क्या किसी को नहीं पता चल रहा है? और मीडिया वाले भी आ रहे हैं चले जा रहे हैं। कितने देर से प्रोटेस्ट कर रही हैं आप? हम लोग 4 दिन से यहीं पे 4 दिन से करिए। क्या कुछ मांगे? जी, हम लोगों ने अपनी सैलरी बढ़ा के मांगी है। सैलरी अभी कितनी है और कितने साल हो चुके हैं आपको जॉब? 12,000 मिल रही है, लेकिन हम लोगों की मांग है 20,000 की। 20,000 में हम लोगों को कट पिट के कम से कम 18,000 मिनिमम तो होना ही चाहिए ना। क्या ये बताइए, हम लोग 12,000 रुपए में रूम का किराया देके अपने बच्चों को पढ़ा के क्या ऑपरेटर ही बनाना है? हम लोगों को ये चीज़ सोचनी चाहिए ना। है, सिलेंडर की महंगाई इतनी हो रही है कि हम लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध के अपने घर की तरफ जा रहे हैं। क्या हमारे बच्चों का फ्यूचर यही होगा? हम अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बच्चे कितने समय से सैलरी नहीं बढ़ाई गई है? 4 साल हो गया है भाई। 2014 में सैलरी बढ़ी थी हमारी। हर साल 200 रुपए। क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार सुबह से। मेरा नाम ईशान तिवारी है। मैं 4-5 साल से देख रहा हूँ सैलरी नहीं बढ़ रही है। 12,000 11,123 रुपये सैलरी हेल्पर की और कारीगर की सैलरी 12,223 रुपये। तो ये होना चाहिए। सिलेंडर मिला है 2,500-3 हज़ार रुपये का, कमरे का किराया जा रहा है 5,000 रुपये। ऐसे हो पाएगा क्या? 20,000 रुपये कम से कम सैलरी होनी चाहिए। 8 घंटे की प्लस डबल ओवर टाइम होना चाहिए। क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर आप लोग यहाँ पर सुबह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मैम, ऐसा है ना कि देखो, औरतों को 9,500 रुपये खटवाया जा रहा है, ठीक? 8 जस्ट लिसन टू मी, 9.5 जस्ट लिसन टू मी, औरतों को, लेडीज़ों को 9,500 रुपये खटवाया जा रहा है। उसके बाद कहीं पे 10,000 रुपये, कहीं 10,500 रुपये। और ये बताओ 11,000 की ये क्या सैलरी है भैया 8 घंटे की? ये दिस इज पॉसिबल? मैम, दिस इज नॉट पॉसिबल। वेयर इज द, हमारा कहना है कि भैया Let's listen from few others as well who are standing here and protesting from long hours. Let's listen from them. Sir, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? संदीप। कितने समय से आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर मुझे हो गया 12 साल। 12 साल से आप जॉब कर रहे हैं और कुछ भी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है? जी कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ मांगे हैं फिलहाल आपकी? जी हमारे बस वही कारीगर की है 12,300 कुछ रुपया। बताया जा रहा है कि बहुत समय से सैलरी नहीं बढ़ाई गई है। हाँ, सैलरी बहुत दिन से नहीं बढ़ाई गई है। ऑफिशियल्स तो कह रहे हैं कि आप लोग की मांग सुनी जा रही है। कहीं नहीं सुनी जा रही। तो कोई यहाँ पर कुछ भी आप लोग को सोल्यूशन नहीं दे पा कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ने जब प्रोवाइड कर दिया है, सरकार ने जब कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दे दिया है, या कंपनी वाले मैम नहीं मान रहे। ये कैसा संविधान है? ये कैसा क्या है? संविधान में सब कुछ सही है, मगर हमारा गवर्नमेंट कह दिया है, कोर्ट ने आदेश दे दिया है, कंपनी वाले मान नहीं रहे। ये कैसे चलेगा? ये कैसे चलेगा? So as you clearly heard from people here, those are the factory workers. They have gathered here from different industrial areas and they are here protesting for their rights. They are clearly asking that their salary should be revised because it's been years, like some are working for 2 years, 3 years, but they are not getting increment, and it's just like just 200 to 300 rupees are getting increased, and that's why they are here. They have gathered here and they are also stopped the passage for traffic because they are saying that unless their demands are met, they will not allow anyone to move from this area to that area. As you can see that on that side also the gathering is huge and people have here made a line as well. I'll try to show you that line as well. So there is a barricade that has been made on that side. People have divided this road in 2 parts. They are saying that only one side they will not allow others to move from one side to other side. They are saying that they are workers and unless their demands are met, they will not allow anybody to move from this area to the opposite side. मुर्दाबाद
Well, Aparna, if most of them are in fact speaking about the kind of problems they're having with their salaries, they are in fact talking about how it's not been raised in the last 3 years. Also, can you ask them some more about what is the kind of difficulties that they are facing? Because is there inflationary pressure on them? Just can you ask them what is the kind of difficulties that they are facing? Some have been speaking about rental issues. Some have been speaking about meeting with the home budget. Can you just speak to them more about on these lines? I can clearly see the tension that is here at different location of Noida. I'll try to connect with more people. मैम क्या नाम है आपका? मीरा देवी। क्या कुछ परेशानियों का सामना करना हमारा सामना इसलिए कर रहे हैं, हमारी पेमेंट नहीं बढ़ रही है। 10,000 11,000 रुपए पेमेंट मिलती है हम लोगों को और हाँ 5,000 रूम का किराया 500 रुपए महीने वो 500 रुपए किलो मिलती है गैस। अब तो गैस भी नहीं मिल रही है, क्या खाएं? अरे मैनेजर भगाता है हम लोगों को। कितने समय से सैलरी नहीं बढ़ाई गई है? सैलरी नहीं बढ़ रही है, हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है। कितने समय से नहीं बढ़ रही है? 2 साल से। हाँ अभी महंगाई बढ़ रही है, इस तरीके से लोगों को सिलेंडर भी नहीं मिल रहा। रेंट कैसे भर पा रही है आप? दे ना पा रहे। बगीचा में से लकड़ी तोड़कर जब रोड पे रख के भोजन बनाते हैं हम लोग, ब्याज पे पैसे लेते हैं तब हम खाते हैं और बगीचा में जाते हैं, सरकारी में लकड़ी तोड़ के लाते हैं। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है और आप लोग की सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही है, क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? मैडम दिक्कतों का सामना तो बहुत करना पड़ रहा है। कहने जो हमारे मैनेजर है ना कंपनियों में, लेडीज से इतनी बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज दे के बात करते हैं। अगर लेडीज टॉयलेट में चली जाएगी तो टॉयलेट में गाली करते हैं। लेडीजों के साथ ही बहुत बदतमीजी हो रही है। हमारा सैलरी आप लोगों को आपके वर्क प्लेस पर वॉशरूम तक यूज करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? हाँ सब चीजों से परेशानी करनी पड़ रही है हम लोगों को। न समझ लो, लेडीज रोने लगती हैं, अंदर तक कंपनी के अंदर सच्चा नहीं मिल रही है हम लोगों को। हाँ तुरंत पास बना देता है। हमारा ये मैम ये मैनेजर है हमारा, यही हम ये 36 में काम करते थे। ओवर टाइम ना ये 36 रीचा ग्लोबल क्या हुआ, उसमें हमने ओवर टाइम लगाने के लिए मना करा, हम पे इतना नहीं लग रहा था तो हमको क्या वहाँ से मैनेजर ने भगा दिया। ओवर टाइम नहीं लगाओगे तो यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती काम कराया जाता है हमसे, ओवर टाइम और गेट पास। ओवर टाइम के पैसे मिलते हैं आप लोगों को? ओवर टाइम के मिलता है मैडम, 10 भागों में बांट के मिलता है पैसा। एक भागों में पैसे नहीं मिलते हैं, 10 भागों में। Right, Aparna. We will in fact keep tracking with this entire issue about these protests that are happening at all these industrial units in that particular area, with several questions being raised about their protests as well, on them receiving what is being considered as their wages as such, and they want the police in fact is going ahead and monitoring the situation everywhere from the control room in Lucknow. Police officers are keeping a live watch about the situation on the ground.